আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা ৰাজ্যত বৰ্তমান নাই কোভিডৰ প্ৰভাৱ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ হৈছিল এতিয়া 2-4 জনৰহে হৈছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ হোলী বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী বিহু উদযাপন কৰাত কোনো বাধা নাই শিল্পীৰ পেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৎসৱ উদযাপন কৰক নহলে তেওঁলোকৰ বহু সমস্যা হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ কোভিড-19ৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ তেনে সময়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৰাজ্যত বৰ্তমান নাই কোভিডৰ প্ৰভাৱ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে মাত্ৰ 2-4 জনহে লোক পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ হোলী বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী বিহু উদযাপন কৰাত নাই কোনো বাধা শিল্পীৰ পেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৎসৱ উদযাপন কৰক এই আহ্বান ৰাজ্যবাসীলৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিয়নো বাৰে বাৰে এনে আহুকালৰ সন্মুখীন যাতে নহয় শিল্পীসকল কিয়নো বিগত বৰ্ষত কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পৰা নাছিল যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল শিল্পীসকল যোৱাবাৰ বিহু উকা উৰুঙা হৈ ৰৈছিল কোভিডৰ ভয়ানক সংক্ৰমণৰ বাবে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিল্পীসকলৰ পেটৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এই ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিয়নো শিল্পীসকল বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় শিল্পীসকলৰ আৰু যাৰ বাবে এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰেই হোলী আৰু বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যবাসীক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে অদৰকাৰী কিয় ওলাই আছে মই নাজানো কোভিডটো ক'তো হোৱা নাই আপোনালোকক কৈছে মোকতো ডেটাটো 40টা কেছৰে দিছে মই 30-40 কোভিডৰটো কোনো ইয়াত কিয় ওলাই থাকে মই নাজানো অসমৰ দৰে জাগা এটাত য'ত আমাৰ পাৰ ডে 3,500 আছিলে আজি 30টা 40টা গতিকে ক'ত 3,500 পাৰ ডে আৰু ক'ত 30টা 20টা 40টা গতিকে একেবাৰে বিহু পাতিব আৰু আমাৰ বিহু নাপাতিলে আৰ্টিষ্টসকলৰতো বহুত ক্ষতি হ'ব ন সেইকাৰণে এইবাৰ মই সকলোকে কৈছোঁ যে বহাগ বিহু পাতক খালি সচৰাচৰ মাস্কখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইমানে কথা বাকীটো আৰু বহাগ বিহু পতাটো কোনো আপত্তি নাই লকডাউন টকডাউনৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে দূৰতে সেইবিলাকৰতো কোনো কথাই নাই সেইবিলাক চিন্তাও কৰা ভুল আৰু মোক 2-এজন আৰ্টিষ্টে ফোন কৰি আছে দাদা বিহু হ'বনে নাই এইবাৰ আমি বিহুত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নিদিওঁ কাৰণ ইলেকশ্যন মিটিং হৈছে যেতিয়া বিহু কিয় নহ'ব হুজাইৰ শিক্ষকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী শিক্ষক নুৰুল হুছেইনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুৰাজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হুছেইন হুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ শিক্ষকজনে ৰাজ্যৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাজ্যৰ দলৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰিছিল হুছেইনে 24 মাৰ্চত যমুনামুখৰ বৰহাওৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সভাৰ ভিডিঅ' পৰীক্ষণৰ পিছতে হুছেইনলৈ জাননী প্ৰেৰণ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ নুৰুল হুছেইনক হুজাইৰ শিক্ষকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে শিক্ষক নুৰুল হুছেইনলৈ জাননী প্ৰেৰণ মুৰাজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নুৰুল হুছেইন হুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ শিক্ষকজনে ৰাজ্যৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল ৰাজ্যৰ দলৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰাৰ অভিযোগ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে 24 মাৰ্চত যমুনামুখৰ বৰহাওৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাৰ ভিডিঅ' পৰীক্ষণৰ পিছতে হুছেইনলৈ জাননী জাৰি প্ৰশাসনৰ আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ আজিৰে পৰা আৰম্ভ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণসূচী মোদীয়ে অংশ ল'ব বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তীত অংশ ল'ব শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মুজিবুৰ ৰহমানৰ সমাধি দৰ্শন কৰিব মোদীয়ে সাতখিৰা ঔৰাকান্দিৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ স্মাৰকতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ঢাকাত মুকলি কৰিব বংগবন্ধু বাপু প্ৰদৰ্শনী ঈশ্বৰীপুৰৰ জহৰেশ্বৰী মন্দিৰো দৰ্শন কৰিব মোদীয়ে
আজি পুনৰ অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাইছে অমিত শ্বাহে আৰু কমলপুৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে অমিত শ্বাহ। কমলপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতাৰ হৈ প্ৰচাৰ অমিত শ্বাহৰ। আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ। ये जो घुसपैठिए हैं, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि घुसपैठिए रुके? जरा जोर से बोलो तो चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर ये बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनती है तो क्या घुसपैठिए रोक सकते हैं? क्या रोक सकती है? क्या जरा जोर से बताओ, रोक सकती है? घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और कुछ नहीं। मित्रों, एक और मोदी जी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आसाम का विकास करने की बात करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी डबल घुसपैठ करने के लिए काला पहाड़ को लेकर आती है। आसाम की जनता को तय करना है कि घुसपैठ करने वाली कांग्रेस पार्टी की और बदरुद्दीन अजमल की सरकार चाहिए या विकास करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 3 परिचय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जन सेवा और विकास का पर्याय है। राहुल गांधी टूरिज्म का पर्याय है। 2-3 दिन आते हैं आसाम में, बाद में 5 साल तक दिखते नहीं, 5 साल तक नहीं दिखते। और तीसरा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल घुसपैठ का पर्याय है। आपको तय करना है विकास के साथ जाना है या घुसपैठ के साथ। हमने हमेशा से आसाम के गौरव को बढ़ाने का काम किया। अटल जी की सरकार थी तब लोकप्रिय गोपीनाथ जी का भी सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने भूपेंद्र हजारिका का सम्मान किया। और कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में तो आई नहीं है, मगर बदरुद्दीन अजमल का सम्मान करने की बात करती है। तो ये अगर सरकार में आ जाते हैं तो बदरुद्दीन अजमल को कहीं राहुल बाबा भारत रत्न न दे दे, इसका मुझे डर है। मित्रों, हम जब 5 साल पहले आए थे, मैं भी 5 साल पहले विधानसभा क्षेत्र में आया था, तब मैंने कहा था हम आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे, हम आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। और 5 साल के बाद आया हूं मित्रों, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सैकड़ों आसामी युवाओं को छाती में गोलियां मार दी गई थी। आंदोलन होते, कर्फ्यू होते थे, आसाम का विकास रुक गया था। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में कोई कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। मित्रों, कोई कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। मुझे बताओ, कमलपुर के अंदर कर्फ्यू आया है क्या? आया है क्या? आगे आओ दिगंत, आप ये दिगंत को विधायक बनाने के बाद एक भी बार कर्फ्यू आया है क्या? कोई आंदोलन हुआ है क्या? कोई आतंकवादी घटना हुई है क्या? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आसाम को आंदोलन मुक्त। आगे आइए, हमारे प्रत्याशियों को आपने जिताने के बाद आंदोलन और आतंकवाद दोनों समाप्त हुए। आसाम के अंदर कांग्रेस के समय में अलगाववाद और आतंकवाद आया। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने शस्त्र डालकर शांति का स्वागत किया है और वो लोग आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। बोडोलैंड भी शांति की दिशा में आगे बढ़ गया है। मित्रों, मैं इतना कहता हूं कि गत चुनाव में हमने कहा था आंदोलन मुक्त आसाम बनाएंगे, आतंकवाद मुक्त आसाम बनाएंगे। मैं इस बार कहकर जाता हूं, बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी।
इतने सालों से लाखों करोड़ों आसाम के नागरिकों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, मगर इसकी व्यवस्था नहीं होती। मोदी जी ने सैटेलाइट के माध्यम से पूरा सर्वे कराया है। ब्रह्मपुत्र के सारे पानी को बड़े बड़े तालाब और सरोवरों में डालने का काम करेंगे। वहां पर्यटन भी होगा, सिंचाई भी होगी और आसाम के लोग बाढ़ से भी बच जाएंगे। बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। नदियों के किनारे का कटाव भी रुकेगा। लगभग 7% भूमि 50 साल में 7% भूमि हमारी नदियों के कटाव में बह गई। अगर ऐसा चला तो और 50 साल में आसाम के पास भूमि ही नहीं बचेगी। मगर मैं आपको कहता हूं कि हम इससे आसाम को मुक्त बनाएंगे। मित्रों, कमालपुर के अंदर लगभग हमने 42,000 लोगों को मकान देने का काम किया है। अकेले कमालपुर के अंदर 32,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 29,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया है और 42,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं अकेले कमालपुर की बात करता हूं। और मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 145 गांवों में डिटेल काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने असम के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। इसी बजट के अंदर 53,000 करोड़ रुपया असम में नई सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूर किया है। 20,000 किलोमीटर सड़क हम 5 साल में बना चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे को नया बनाने का काम चल रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का स्थापन करने का काम किया है। टीहू में फूड पार्क बनाने का काम किया है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान भी बनाया है। और प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख लोगों को जमीनों का पट्टा देने का काम भी किया है। और गैस की रॉयल्टी सालों से कांग्रेस सरकार नहीं देती थी। सरकार बनने के बाद पहले ही साल 8,000 करोड़ रुपए की गैस की रॉयल्टी देने का काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ढेर सारा काम किया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा कमालपुर को होने वाला है। आपकी बगल में ही एम्स अस्पताल बन चुका है, शुरुआत हो चुकी। कैंसर का बड़ा अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है। और मैं सर्वानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को कोरोना से बचाने का काम ये आसाम की सरकार ने किया। मित्रों, ढेर सारे ऐसे काम हैं जिसकी मैं घोषणा कर पाऊं, मगर आगे एक और सभा है जहां समय के कारण लोग आकर बैठ गए हैं। इसलिए मैं कुछ चुनावी वादे, हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र वो बताना चाहता हूं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव के प्रचार के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अमल करने के लिए होता है। मित्रों, हमने तय किया है 8वीं कक्षा के बाद सभी बच्चियों को साइकिल देकर उनको 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। कॉलेज में जाने वाली हर बच्ची को, हर महिला छात्र को हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देकर आराम से कॉलेज में जाए और स्कूटी पर मां को लेकर सब्जी लेने भी जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सभी ब्लॉक में सरकारी बीएड कॉलेज बनाए जाएंगे।
सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरी का सृजन 2022 के पहले करने का काम। सभी ब्लॉक में जो अस्पताल है की बिस्तरों की संख्या हम 2 गुना करने वाले हैं और एक हेल्थ केयर एसईजेड गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास बनाएंगे, जिससे कि न केवल आसाम पूरे देश की हेल्थ केयर की व्यवस्था को ताकत देने का काम हो सके। अब समझो भाई, गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास हेल्थ केयर का एसईजेड बनेगा तो आप मानकर चलो सबसे ज्यादा नौकरियां कमालपुर वाले को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान निधि जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं असम सरकार, उसमें 2,000 जोड़कर हर किसान के खाते में 8,000 रुपया सालाना देने का काम करेगी। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपया ओबीसी कल्याण के लिए दे जाएगा। ताई, अहोम, कोच, राजवंशी, चुकिया, चाय जनजातियां, मोरेन और माटक को एसटी स्टेटस देने के लिए सार्थक प्रयास हम करेंगे। मित्रों, ढेर सारा संकल्प पत्र हमारा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। गुवाहाटी के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाया जाएगा और आसाम भर के अंदर सभी नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारे संकल्प पत्र के वादे हैं, मगर ये वादे नहीं हैं, हमारा संकल्प। मैं आपको कहकर जाता हूं कि हमने आसाम को आंदोलन मुक्त, आतंकवाद मुक्त बनाया, आसाम को रोजगारी युक्त बनाएंगे, बाढ़ मुक्त बनाएंगे और आसाम को एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप लोग बताइए कि आने वाले चुनाव में हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताकर प्रचंड बहुमत के साथ विधायक बनाकर भेजेंगे क्या? बोलिए जरा जोर से, भेजेंगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे, आसाम को रोजगारी से युक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों আৰু ইয়াক কমলপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সম্বোধন কৰিছে বিশাল জনসভা। কমলপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ যাব